Hi, hello, namaste. Welcome to NTV. This is me, Harika. Today, I'm going to talk about a lady who introduced an amazing concept in the fashion industry. Her vision, her idea has become a revolution, and she is Miss Prerna, a woman entrepreneur, a fashion designer, and much more. And her startup is Ispirare by PR. So, without any further delay, let's invite her and understand her journey in her words. Hi Prerna, how are you doing? Hi, I'm great. How about you? I'm doing good, thank you. So stepping into your boutique, first thing that I realized was your outfits are really amazing. Thank you They so were much. really cool, they were really unique. And Thank you. I personally wanted to know that how all you started this. Brief us about your journey. It just started like very early stage of my life. Like I was when 8 years old. So my father bought me a color TV. Before that it was black and white. So after that I saw the colors and theme and everything in picture. I started fascinating about the fashion, the color combination and everything. That's how it started. So 8 year lady who's a girl has a dream so very big, I must say actually. So Yes, 8 of years. course. Though my fathers want me to do a medical or engineering, after seeing my passion into fashion, because what I used to do, I take out my mom's clothes and I cut it down and make dresses for me. I know I got At a very lots young of age. very young age. बाद में मुझे डांट पड़ती थी of course. Yeah. But yeah, how is it started? And then my father told me, if you have a passion in fashion industry, just go for it. So it's just Okay. started like that. So, मतलब आपने एक कोर्स किया है या मतलब फैशन डिजाइनिंग में? How Yes. did you step into this? See, I did mastery in fashion designing and then I started my internship. I it takes almost 5 years to learn about the fashion. See, the people see the dresses and everything. It's not only fashion. Behind that, there are lots of things you have to study about this, like color combination, how it goes, the techniques and everything. So yes. Espirare by PR. So actually, when I listen to the term, na, it's actually fascinating. So what is it? What is the meaning of it, and why did you put this as your startup name? Okay, so ispirare, it's an Italian word, means inspired. Okay, so I as I told you, I'm very inspired about the fashion and everything. So I kept this name as Ispirare. Okay, so the customers, what the customers should inspire and get into your Espirare. Okay, so we have very unique. It's a USP that we work on zero wastage concept. Okay, like every year, 2 billion ton of fabric textiles is going to the dump every year. मतलब जो फैब्रिक्स मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक्स होते हैं लाइक इन अ फैक्ट्री इफ यू आर मेकिंग 1,000 सूट और अ ड्रेस सो आफ्टर कटिंग देयर लॉट्स ऑफ लेफ्ट ओवर फैब्रिक जो किसी के काम में नहीं आते वो डम ही करना पड़ता है so I thought about it, then why can't we make design of this waste remaining left out of right remaining fabric and we can create some unique designs. तो मतलब आपने ही कहा था मतलब इट इज रियली चैलेंजिंग मतलब लेफ्ट आउट में आपको अलग अलग पीसेस मिलता है एंड यू डोंट हैव अ परफेक्ट पिक्चर टू डू समथिंग और क्रिएट समथिंग yes so there are many challenges in this so how you are doing it if you are talking about challenges it's in every field. Okay, so about Ispirare, we what it's like we got the fabric and then we think about the designs. okay Like if we have 4-5 pieces, then we think about how can we merge all the fabric and create something unique for the customers. So it's like every day every new concept every new design and you Right. create every new outfit from your scratch. Yes. So can you show me as we can see it मतलब there are many outfits here but there may be much great struggle behind this. Can you show us that? Yes, from this I can show you one piece. See, this is. So this I got leftover fabric with like 0.5 meter or 1 meter kind of or through
2-3 pieces. So I kept this leftover fabric over here and in the sleeves and the panel also, and I created this one. ग्रेट. मतलब एक्चुअली आपको हर डिजाइन में हर यूनिक आइडिया आनी चाहिए. मतलब जो जो लेफ्ट ओवर का Right. पीसेस मिलता है आपको, इट्स रियली चैलेंजिंग. तो मतलब हाउ डू यू प्रोड्यूस इट? कैन यू शोकेस योर प्रोडक्शन Yes, यूनिट? of course. And we can create some ethnic also with this leftover. I can show you this one, like, okay. ओके. So these are the patches. I got it from the leftover, and then I designed this blouse and this lehenga. So, लहंगा. yeah. सो वेयर डू यू, मतलब कहाँ से मिलता है आपको ये लेफ्ट आउटेड पीसेस? Left out it, see now the Surat and Ahmedabad, it's a major place where we get this left out fabric. सो मतलब यू आर टाइड अप विद सम फैक्ट्रीज और ऐसा कुछ? Yes, there are lots of factories where we have tied up with them. ओके. सो मतलब आप जो प्रोसेस है, जो लेफ्ट ओवर से पूरा कपड़ा बनता है, कैन यू शो अस? Yes, please. ये आपका ये हमारा यूनिट है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ हम लोग काम करते हैं. तो आपका पूरा टीम कितना है? मेरा टीम ऑलमोस्ट 22 लोगों का टीम है हमारा. कुछ प्रोडक्शन में है, कुछ डिजाइनिंग में है, कुछ मगम वर्क में होते हैं. ओके. अच्छा, मगम वर्क भी करते हैं? राइट. क्योंकि वी साउथ इंडियंस लव मगम वर्क्स एक्चुअली. यस, सो मैक्सिमम जो हमारे ऑफलाइन क्लाइंट्स है, दे लाइक अवर वर्क. अच्छा. तो आपने जो अभी जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट बताया, वो कहाँ करते हैं? प्लीज कम, मैं आपको दिखाती हूँ. पहले ये डम पूरा देख के ना मुझे सच्ची में आई फील वेरी बैड कि मतलब इतने सारे वेस्टेज जो है हम सीधा डम कर रहे. देयर इज नो यूज ऑफ इट एंड यू आर डूइंग इट. इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव, आई मस्ट से. मतलब इट लुक्स सो, मतलब इतने सारे डम के इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या क्या कपड़े लेंगे, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एंड करें, तो कैसे डिफाइन करते पूरा? सी पहले हम लोग इस फैब्रिक को कैटेगराइज करते हैं. थोड़े बड़े फैब्रिक को अलग रखते हैं, फिर उससे छोटे, ऐसा करके 3-4 कैटेगरी निकालते हैं हम लोग. देन वो सारे फैब्रिक हाइड्रोलिक वॉश के ले जाते हैं, बिकॉज फैक्ट्री से यहाँ तक आने में इसमें पता नहीं कैसे आया, क्या हुआ. देन ये हाइड्रोलिक वॉश के लिए जाते हैं. देन वी क्रिएट डिजाइंस लाइक आई कैन शो यू एनी फैब्रिक. हाँ, ओके, लाइक दिस. Okay. So if you'll ask me, I can create design with this also. Like this is a. No one can ever imagine ये इससे एक कपड़ा बन सकते हैं, to be honest. Of course, like we can use this panel. इसको use करके एक अच्छे कपड़े में इसका border डाल सकते हैं, sleeves पे डाल सकते हैं, then नीचे panel पे डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ये it's all about creativity. So मतलब आपको ये जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट शुरू करने का मोटिवेशन कहाँ से आया? मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू? मैं एक डिज़ाइनर के यहाँ काम करती थी. उनके यहाँ भी ऐसा ही बहुत बड़े लेवल पे काम होता था. सो एंड ऑफ द डे, एवरी डे बहुत ज़्यादा वेस्ट जाते थे. जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक होते थे वो सीधा डंप के लिए चले जाते थे. ये मेरे को बहुत ही बुरा लगता था कि इट्स causing creating something for the environment. It's harming environment. Yes, it's harming. Every years almost 2 billions of ton fabric से waste हो जाते हैं, and it's not good for the ecosystem also. So I thought about it, क्यों नहीं कुछ इससे start करें. Let's see. It's really good initiative. I really hope कि ये सारे लोग के पास पहुँचे, कि मतलब people who think that ये जो wastage है ये सिर्फ wastage ही है, but it's not. It's not like that. No. Even कभी आप अपने घर में भी कुछ बना रहे हो, एक ड्रेस ही बना रहे हो, उसमें भी बहुत सारे फैब्रिक निकलते हैं, फिर उनको लोग फेंक देते हैं. You can think about it, or either you can give to us, we can create something for you. अच्छा, you also take the मतलब मटेरियल जो आपके पास वेस्ट है? Of course, मैं फैक्ट्री से ही ले रही हूँ, अगर आपके पास भी है, so that you can contribute yourself into the environment to make the environment safe. It's the first step towards sustainability, I must say. Yes. Okay, so after defining ये कपड़ा है and designing, तो उसके बाद क्या process होता है?
सी ये हाइड्रोलिक वॉश के बाद आता है, फिर हम लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं. लाइक आई विल शो यू वन डिजाइन. ओके. जस्ट आपके सामने एक ड्रेस है, ये वेस्ट से बना हुआ है. कैन यू टेल मी कि ये कैसे बना है? बिल्कुल भी नहीं सोच सकती मैं एक्चुअली. ओके, सो ये सारे पार्ट्स एंड दिस बैक साइड ये पूरे वेस्ट से बना हुआ है. आई कैन शो यू. वी गॉट दिस काइंड ऑफ फैब्रिक, दिस स्मॉल एंड वी क्रिएट दिस पैचेस. बट अगर आप पास से भी देखोगे इसको तो इसमें कहीं भी आपको स्टिचिंग विजिबल नहीं होगा. मतलब ऐसे लगता है कि ये पूरा पैटर्न एक ही क्लॉथ का है. राइट, बट ये सारे पैटर्न अलग अलग हैं. ये फ्रंट में भी. और ये पीस हमारा रेडी हुआ है, ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो रहा है. ओह ग्रेट. तो मतलब आप एक्सपोर्टिंग भी करते हैं मतलब? हाँ. सो बेसिकली हु आर योर क्लाइंट्स? मेरे बहरीन के क्लाइंट्स हैं, एनमार है, मैंने बिग बाज़ार के लिए भी किया है. तो सूत्रा है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे. ओके नाइस. तो वंस आफ्टर डिजाइनिंग देन इट्स कम्स टू कटिंग. राइट. सो डिज़ाइनिंग के बाद हम लोग पहले फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं, देन फिर हम उस पर कटिंग करते हैं, क्योंकि पूरे से ड्रेस नहीं डिज़ाइन हो सकता हमारे लेफ्ट ओवर से. सो वी मिक्स सम न्यू फैब्रिक ऑल्सो. ओके. सो वो कैसे होता है, कम आई विल शो यू. श्योर. सो ये हमारा कटिंग टेबल होता है. जब भी आप कपड़ा काटते हैं, सो टेबल जितना बड़ा होगा आपका वेस्टेज उतना कम होगा. ओके. ताकि आप पूरे कपड़े एक साथ फैला के उसके बाद उस पर कटिंग कर सकते हैं. ओके. फिर हम लोग फार्मा डालते हैं. जो ड्रेसेस बनते हैं उसके लिए उसके पहले एक फार्मा रेडी होता है. अच्छा, दिस इज द फार्मा. दिस इज द फार्मा. ओके. फिर मतलब कैसी शेप चाहिए ऐसे शेप में हम आपको कट कर सकते हैं. राइट. सो एक साथ में बल्क में हमारा कटिंग होता है, लाइक 2000 पीसेस 4000 पीसेस Okay. होते हैं. तो उसके लिए फार्मा चाहिए, क्योंकि एक एक कटिंग पॉसिबल नहीं होता है. सो ये हमारा कटिंग टेबल है और इस पे हम लोग फार्मा रख के फिर कटिंग करते हैं कपड़ों को. ओके. सो मतलब अभी पूरा एक कपड़ा मतलब आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पूरा वेस्टेज से आउटफिट बनाने में कितना दिन लगता है एंड कितना टाइम लगता है, मतलब कितने लोग लगते हैं? लोग तो बहुत लगते हैं. सी टाइम हमें डिजाइनिंग में ज़्यादा टाइम जाता है. एक क्रिएटिविटी को Correct. सोचना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है. देन फिर ये 2-3 दिन का फिर प्रोसेस होता है. सो आप यू द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस आइडियाज एंड आउटपुट? Yes, but I have a good team also जिनका मेहनत होता है, so that we can present ourselves in that way. तो कटिंग में पूरा कितना शेप्स होते हैं, मतलब कैसे करते हैं ये सब? See, ये फार्मा होता है. जैसे ये है, ये हमारा बैक है. So बैक हो गया, देन फ्रंट हो गया, फिर नीचे का पल्ला होता है, स्लीव्स होते हैं. ये जैसे हमारा ये स्लीव्स हो गया. ओके. मतलब बेल बॉटम स्लीव्स है, तो ये आप स्लीव्स पे यूज कर सकते हैं. देन ये हमारा फ्रंट है. सी बैक हम लोगों ने पूरा रखा है, फ्रंट कट है बिकॉज आगे हम लोगों को यहाँ पे बटन्स डालने हैं. अच्छा. ओके. सो पहले फार्मा रेडी होता है डिजाइनिंग के बाद, और फिर उसमें ग्रेडिंग होती है. ग्रेडिंग लाइक साइजेस होते हैं. स्मॉल होते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं, लार्ज होते हैं. ये सारे साइजेस के लगते हैं फिर. ओके. सो सारे एक ही साथ करते हैं मतलब कटिंग? हाँ हाँ. ओके. ये हमारा टाइम सेव करता है. ये जैसे एक डिजाइन का ये स्लीव्स है, ये लॉन्ग स्लीव्स है. मतलब ये स्लीव है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते. यस, ये ऐसे फोल्ड होके ये स्लीव्स आता है. ओके. नाइस. मतलब दिस इज मतलब बिहाइंड, मतलब क्या भी जो भी शेप है, दिस फार्मा हेल्प्स यू इन एवरीथिंग. राइट. सो फार्मा बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है सबसे पहले डिजाइनिंग के बाद. सो आफ्टर कटिंग द प्रोसेस वुड बी द स्टिचिंग. ओके. तो ये
पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी पूछेंगे कि कैसा लगता है। तो आपका नाम क्या है? राज कमल सिंह। तो आपका रोल क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे अभी स्टिचिंग कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स की लाइक स्टिचिंग होती है, कटिंग होती है, फिर उसके बाद वो हमारे पास हैंड ओवर की है। अच्छा, सो कितने साल से आप कर रहे हैं? अराउंड लाइक 8 मंथ। 8 मंथ्स। तो मतलब एक्सट्रीम वर्क होता है, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, मतलब बहुत सारे डिज़ाइन से हर दिन हर एक नए चैलेंज आएंगे, मतलब कैसा पूरा लगा? डेफिनेटली एज अ डिज़ाइनर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। हमें डेली कहीं ना कहीं कुछ नए क्राइटेरिया में फिट होना पड़ता है, ट्रेंड्स और फॉलो अप करना पड़ता है। डेफिनेटली ये हमारे लिए लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि हम बोल सकते हैं। और यहाँ का क्लाइमेट भी ऐसी अच्छी है कि हमें उसको फुलफ़िल करने की ये नीड करता है। अच्छा, तो कस्टमर का फीडबैक कैसा लगता है, मतलब और बात जब करते हैं आप क्लाइंट से? हाँ हाँ, हम जनरली बहुत से क्लाइंट से बात करते हैं, उनको कुछ लाइक कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, कुछ अपना लाइक कस्टमाइजेशन करते हैं, तो डेफिनेटली हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, तो मतलब अभी एक जो कपड़ा दिया आपको, मतलब आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बोल सकते हैं उसको, जी। तो पूरा कितना टाइम लगता है? तो आप प्रेरणा मैम से आप काम कर रहे हैं, मतलब हाउ इज हाँ, सो इट्स डिपेंड अपॉन कि कैसे डिज़ाइन है। अगर बहुत छोटे-छोटे स्क्रैप्स हैं, सो इट्स कम अराउंड लाइक 20 डेज़ मिनिमम टू मेक वन आउटफिट, क्योंकि उसमें बहुत छोटे-छोटे काम होते हैं, बहुत बारीकी का काम होता है। इवन यू हैव टू क्रिएट अ फैब्रिक फ्रॉम स्क्रैच, राइट? सो छोटे-छोटे स्मॉल पीसेस को जोड़ के फिर उसको एक फैब्रिक में बनाना, देन आप उसको डमी पे ले जाते हो, देन कटिंग करते हो, देन डिज़ाइनिंग करते हो। दैट विल टेक टाइम लिटिल। तो प्रेरणा मैम से आप काम कर रहे हो, हाउ इज इट वर्किंग? नो, शी इज़ वेरी नाइस। मतलब आई कैन से कि बहुत ही अच्छा, मतलब इनका काम भी है। आउट ऑफ द थिंग्स है, मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सस्टेनेबल पे वर्क हो रहा है, क्योंकि स्क्रैप के साथ वो वर्क करें। और अगर हम पास्ट में देखें तो इन वर्ल्ड लाइक फैशन इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड, like you can say, it's the industry, it's harming your nature. So here we are not wasting even single stretches of तो that. आपके पास जो बचा हुआ कपड़ा होता है उसके साथ भी आप खुद ही कपड़ा हाँ बनाते बिल्कुल, हैं? उसके साथ हम उसको ज्वाइन करके एक फैब्रिक क्रिएट करते हैं, देन अगेन उसको हम बनाते हैं कपड़े में तब्दील। So this is the magam work that you've been speaking about. यस। सो ये अभी पहले मैं सैम्पल बनवा रही हूँ। इसमें से जो सैम्पल इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा या जो डिज़ाइन मुझे अच्छे लगेंगे, फिर ये पूरी साड़ी पे जाएगी। So this is weaving actually. तो weaving Right. के लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए, तो वीवर्स कहाँ से आता है? सी डिपेंड करता है। ये हमारी बनारसी सिल्क है, कतान सिल्क इसको बोलते हैं। इसके वीवर्स हमारे बनारस में हैं। ओके, तो सिर्फ बनारस वीवर्स भी वीवर्स से ही कराते हैं? हाँ, सो डिज़ाइंस लाइक हम लोग साड़ी में भी कस्टमर्स को देते हैं, डिज़ाइन करते हैं। आपको कुछ और बॉर्डर चाहिए, कुछ नया चाहिए, ये प्रॉपरली हम लोगों ने उनको डिज़ाइन दिया था। ये हमारी एक यूएस की क्लाइंट है। ओके, मतलब यूएस की क्लाइंट है, बनारसी वीवर्स से बनाते हैं। इट्स नाइस। हाँ, Good to फिर hear. डिज़ाइन देने के आने के बाद फिर उस पे हमारा वर्क होता है। ओके, नाइस। तो मगम, ये मगम वर्क्स का भी मतलब अलग प्राइसेस होता है, या ये भी कुछ कस्टमाइजेशन में मतलब वेस्ट से करते हैं, या ऐसा कुछ है? ये दूसरा वर्टिकल है? इसमें हमारा जो वेस्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर है, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एंड इट्स प्योरली वीव्ड, तो प्योरली वीव, प्योरली सिल्क होता है हमारा। सो मगम वर्क्स मतलब एवरी साउथ इंडियन लाइक्स, क्योंकि बनारसी, कांचीवरम, ऐसे बहुत सारे वीविंग ये सब बहुत पसंद है। तो आपके पास पूरा कितना वीवर्स है? हमारे पास अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग वीवर्स होते हैं। लाइक कांजीवरम के लिए हमारे चेन्नई में है लोग, बनारसी के लिए हमारे पास बनारस में होते हैं लोग, मटका सिल्क वगैरह के लिए बिहार में है, तसर सिल्क के लिए सब बिहार के हैं। सो प्रॉपर वीवर से हमारा कांटेक्ट होता है। इस बीच में कोई भी डीलर्स नहीं होते, होलसेलर्स नहीं होते। सो रेट्स भी जो आप मार्केट से साड़ी लेते हो, वो एक प्रॉपर ऐसा होता है लाइक मार्केट में 20 सेम साड़ियाँ आती हैं एंड प्राइजेस आर ऑलवेज हाई। ओके, बट आप जब डिज़ाइन करवाओगे और डायरेक्ट वीवर से हम लाते हैं तो रेट्स भी हमारे कम होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट। एंड वीवर्स को भी जो देते हैं कमीशन वगैरह, वो कैसे आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ना वीवर्स को मतलब दे आर नॉट गेटिंग राइट प्लेटफॉर्म जो करने के लिए, या जो आप उनका जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए। हाँ, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली वीवर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और उनका जो भी काम होता है, लाइक ये हमारा काम नहीं है, ये जो भी किया है उन लोगों ने ही किया है। ओके, सो अभी ये उनके काम हाईलाइट हो रहे हैं।
ओके, सो इसका मतलब आपके पास वेस्टर्न ट्रेडिशनल सब मिलता है, मतलब जो भी Everything. कस्टमाइजेशन आउटफिट चाहिए वी कैन डायरेक्टली Yes. कम टू प्रेरणा. Yes. सो जो कपड़ा बनने के बाद इस आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जनरली. Right. तो यहाँ पर क्या क्या करते हैं, मतलब सारे कपड़े का अलग अलग आयरनिंग होता है एक्चुअली. यस, सो जब कपड़े सिलते हैं उसके बाद ये पार्ट जो होता है इसमें आयनिंग प्रॉपर नहीं होती है तो वो फिर पूरा फिनिशिंग चला जाता है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एंड थिंग एवरी टाइम ऑफ द ड्रेसेस, अच्छा, फिनिशिंग के लिए. फिनिशिंग के लिए. सो दिस इज लाइक if we have to add in this one, every pieces are different, सब अलग अलग होते हैं तो सबका डिफरेंट ही करना होता है. बट मेजर थिंग्स अगर हम लोग सिलाई के ऊपर आयनिंग नहीं करेंगे तो वो कभी भी परफेक्शन नहीं आता है. ओके, सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक, मतलब टिप होना चाहिए सारे फैशन डिजाइनर्स के पास. राइट. डिजाइनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द दिस इंडस्ट्री. ओके ओके, सो आयरनिंग के बाद आइनिंग के बाद हमारा क्वालिटी चेक होता है. एक बार पहले होता है, देन आइनिंग के बाद फाइनल क्वालिटी चेक होती है हमारी बिफोर पैकेजिंग द प्रोडक्ट. ओके, लेट्स गो टू द क्वालिटी चेक एज वेल. श्योर. सो ये हमारा क्वालिटी चेक हो रहा है. ओके, सी कभी ड्रेस बनने के बाद बहुत सारे थ्रेड रह जाते हैं इनसाइड या कहीं स्टिचिंग छूट जाती है तो क्वालिटी चेक करती है ये मैडम एंड देन अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ये वापस स्टिचिंग पे जाता है. ओके, सो जो भी कपड़ा हम करते हैं क्वालिटी चेक में, सो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो भी मतलब आप फिनिशिंग में देते हैं पहले कस्टमर को देने के पहले, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू चेक इन दिस? ओके, पहला होता है मेजरमेंट. अगर मेजरमेंट एक धागा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर हमारा वो स्क्रैप में चला जाता है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए. सो ये लोग पहले मेजरमेंट चेक करती है, देन फिनिशिंग चेक करती है. लाइक कभी कभी कहीं से मशीन चलते रहते हैं तो कभी धागा छूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो सबको हम लोगों को बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है बिफोर डिस्पैच. अच्छा, तो मतलब अगर यहाँ पर भी जो कपड़ा बचते हैं या रिसाइकिल में या जो भी कुछ डैमेजेस होता है उसका क्या करते हैं? अगेन फिर उसको ओपन करवा के हम लोग फिर से ड्रेस बनवाते हैं. कभी भी हमारा कुछ भी फैब्रिक वेस्ट नहीं होता. ओके, सो इसीलिए शायद आपका सारे क्लाइंट्स भी हैप्पी होंगे कि मतलब Yes. क्वालिटी चेक तो 2 बार कर रहे हैं, तो इट्स अमेजिंग. So after looking all of this, I must say hats off to you. मतलब इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट आप लाए थे हैदराबाद में, and sustainability is truly amazing. And why Hyderabad as your dream destination? So now Hyderabad is open place for me and people of Hyderabad, they are very acceptable. They accept the things very easily and they encourage you to do something. So that's why Hyderabad. Thank you for starting यहाँ पे, क्योंकि everyone Thank you. needs to be sustainable and has that focus should be. Yes. तो उसके बाद coming to apart from this, मतलब आपके customers कैसे तरीके के होते हैं? मतलब आप कस्टमाइजेशन भी करते हैं या वीवर्स का भी, आप ट्रेडिशनल आउटफिट्स भी है, तो पूरा कस्टमर टारगेट ऑडियंस कैसे है आपका? You will get everything in one house, I must say. हमारे टारगेट ऑडियंस 20 years, 18 years you can say, 18 years to 60 years के हैं. हर कोई है. जो वेबसाइट हमारा जो मैं अभी लॉन्च करने वाली हूँ, दैट बेसिकली मोर ओवर दिस टीनेजर्स, मगम वर्क एंड दिस कस्टमाइजेशन, वो मैक्सिमम जो लोग होते हैं आफ्टर 30 के जो लोग होते हैं या मैरिड पीपल होते हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि यंगस्टर्स दे डोंट गो फॉर दिस मगम वर्क एंड ऑल. सो हमारे टारगेट ऑडियंस का जो वाइड है वो काफ़ी लंबा है. तो आपका पूरा कस्टमर जो ऑनलाइन या ऑफलाइन सेगमेंट्स में है? मतलब एक तो पहला सेगमेंट जो मैंने आपको बताया वो एक्सपोर्ट का है हमारा. दूसरा सेगमेंट जो है वो कस्टमाइजेशन में है एंड तीसरा हमारा जो है वो है वेबसाइट जो मैं मंडे को लॉन्च करने वाली हूँ. ओह ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वेबसाइट, आई मस्ट से. थैंक यू सो मच. सो मतलब अभी ये सारे आउटफिट्स का है जो उसका मतलब स्क्रैच से बनाते हैं या कस्टमाइजेशन करते हैं, ये सारे की प्राइस रेंजेस कैसा होता है? अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे प्राइस रेंज जो है स्टार्टिंग है वो 1000 रुपीज़ से, इवन उसके कम के भी हैं. सो
टारगेट ऑडियंस जो हमारे हैं वो टीनेजर्स हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट बेस है. देन मग्गम वर्क, या यू नो इट्स ऑलवेज एक्सपेंसिव, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि जो हमारे कस्टमर के बजट है हम लोग उसमें फिट हो सके. And you also said that middleman नहीं है या brokers नहीं है, weavers और आपके साथ, so it will also be beneficial for the customer. कस्टमर्स ऑल्सो, यस. हाँ, तो मतलब आपने जो बताया था कि आपका क्लाइंट्स एक्सपोर्टिंग भी करते हैं या बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी आपका क्लाइंट्स है, हाँ. तो आपका जो एक्सपीरियंस है कि ये मेरा बेस्ट आउटफिट है, ऐसा कस्टमर्स रिस्पॉन्स कैसा लगता है ये सब सुन के? मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे कुछ बेस्ट आउटफिट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ये ऑलमोस्ट 3 से 4 बार अभी तक हम लोगों ने सप्लाई दिया है पेरिस में. ओके, सेम डिजाइन, सेम कॉन्सेप्ट, वो अभी तक चला आ रहा है. सो दैट इज द ट्रेंड सेटिंग ना? ट्रेंड सेटिंग, यस. एंड बहरेन के लिए भी हमारे जो कस्टमर है उनके कुछ पीसेज है, लाइक अभी तक हम लोगों ने 1000 डिजाइन सप्लाई किए होंगे, तो उसमें से 5-6 ऐसे डिजाइन है जो रेगुलर उनके पास जाता ही है हमारा. What motivates you when you woke up, and what are the principles you believe in yourself? Motivation is always about yourself, how you motivate yourself. That is, my thing is I'm very passionate about my work, the color, as I told you, the different kind of designs. India have very various range of designing, then handwork and everything. So I love that thing, and it's give me a kind of boom in every morning. Okay. Yeah. Great. So मतलब अभी जो women entrepreneurs है, मतलब it's truly inspiring, your story is truly inspiring. जो women entrepreneurs है who wanted to step in this kind of industry या fashion industry में, what is your best advice? For the women or men, anyone, if you want to step into a business, either it's a fashion or anything, first you have to set your goal. Every morning you have to set your goal. Like, आज don't go for the long step, just a small step. So that's I believe. I don't go for like a jump to a one step to another step. A small step. I believe in that. Every step creates a cumulative progress. Right. So customers अगर approach करना चाहते हैं कि आपके पास बनाएं, तो how should they? पहला तो वो वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, दैट इज inspirarebypr.com, inspirarebypr.com. और दूसरा हमारा फ़ोन नंबर है, दैट इज 7330678222. So lastly, what are your future plans and goals? Future plan is to make my company, to take this company to the next level of international level, I can say that. Already And, exporting, it's global brand. I yes, must say. yes, but still I want something that most of the people in this world go this sustainability. They turn into sustainability. It will help their future, and yeah. Truly amazing. That was really nice talking to you. Thank That you. was story of Ms. Prerna. उनकी सोच एक ही है, create something sustainable, affordable and fashionable. And if you wanted your outfits to get created by Prerna Garu, you can also visit inspirarebypr.com. That was NTV. Thank you.